So let's get continue with our chapter that is the class 10th science 1 chapter number 9 that is carbon compounds. So अब तक हमने जो देख लिया था that is about the saturated and unsaturated hydrocarbons. So saturated hydrocarbons क्या होते हैं जो कि जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है that is they are called as the saturated hydrocarbons. और unsaturated hydrocarbons जो होते हैं so उनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखाई देता है. So the carbon compounds which contains the carbon-carbon single bond in between them, that such type of the carbon compounds are called as the saturated hydrocarbons. और जो कि जिसके बीच में the carbon compounds which having the double or the triple bond in between the carbon carbon atom, so that type of the carbon compounds are called as the unsaturated hydrocarbons. So लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक. और एक जो था एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर जनरली हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट देयर इज द डबल अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर में होते हैं. सो ड्यू टू विच दे such type of the compound that is the aromatic compound is the benzene. Next topic that is the functional groups in the carbon compounds. So till now you have learnt till now you have learned about the hydrocarbon compounds formed by the combination of the elements carbon and hydrogen. Many more types of the carbon compounds are formed by the formation of the bonds of the carbon with the other elements such as the halogens, oxygen, nitrogen and sulfur. So अब तक जो भी हमने कार्बन के कंपाउंड देखे सो उनमें मेजर जो दो एलिमेंट जो कि यूज हो रहे थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स दैट इज द कार्बन एंड द हाइड्रोजन. लेकिन कार्बन कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बल्कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बन सकते हैं. सो द एटम्स ऑफ these एलिमेंट्स constitute one or more hydrogen atom in the hydrocarbon chain and thereby the tetravalency of the carbon is satisfied. और जो कि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और सल्फर से. सो टू फुलफिल द वैलेंसी दैट इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन की जो है वो फुलफिल हो सकती है, and this leads to the formation of the new compounds. So the atom of element which is substitute for the hydrogen is referred to as the heteroatom. और जो एटम एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है सो दैट टाइप ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज द हेटेरो एटम. हेटेरो दैट मीन्स नॉट द लाइक. सो लाइक दैट मीन्स ऑल सारे जो थे वो हाइड्रोजन एटम्स थे, लेकिन उसको अगर हम रिप्लेस कर दे सपोज एक हेलोजन दैट इज द क्लोरीन से, so that acts as the chlorine वहां पर heteroatom करके act करेगा. So sometimes heteroatoms are not alone but exist in the form of certain groups of the atoms. और कभी कभी कुछ ऐसे भी होता है कि जो heteroatom होता है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, सो वो ग्रुप में होता है, ग्रुप ऑफ द एटम्स में होता है. So the compound acquires specific chemical properties due to these heteroatoms or the groups of the atoms that contain the heteroatoms, irrespective of the length and nature of the carbon chain in that compound. Therefore, these heteroatoms are the groups or the groups of the atoms containing heteroatoms are called as the functional groups. और functional groups की यहाँ पर जो definition यहाँ पर दी है. So this is the definition of the functional group कि मतलब जो भी हेटेरो एटम्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट रहेंगे सो उसकी वजह से उस कंपाउंड को एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी आती है. सो ये जो नेचर जो कंपाउंड को स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें ऐड होती है ड्यू टू द हेटेरो एटम, सो सच टाइप ऑफ द हेटेरो एटम्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. The table 9.16 shows a few functional group that occurs in the carbon compound. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब कुछ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलोंग विद द कंडेंस फॉर्मूला यहाँ पर दी है. So here the free valency of the functional group is indicated by a short line. The functional group taking place of a hydrogen is joined to the carbon chain with this valency. The carbon-carbon double and triple bonds are also recognized as the functional groups as the respective compounds get specific chemical properties due them. So
यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द फंक्शनल ग्रुप्स। सो यहाँ पर जो फुलफिल करनी है जो वैलेंसी, दैट इज द टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन। सो डिफरेंट डिफरेंट जो कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन के अलग अलग जो भी ग्रुप्स है वो कार्बन के इसको अटैच होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ऐड करते हैं बाय दिस हेटेरोएटम, दैट इज द एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। सो हेटेरोएटम यहाँ पर क्या है? सो हेटेरोएटम दैट इज द हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो हेलोजन्स जो कि ग्रुप 17 के हैं। ग्रुप 17 के बारे में जो कि हमने चैप्टर 3, जो चैप्टर 2 दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के इसके इसमें सबसे ज्यादा डिस्कस किया है। सो हेलोजन हमारे पास कौन कौन से है? सो मैंने आपको बोला था दैट इज द फ्लोरीन। देन हमारे पास एक फ्लोरीन। देन हमारे पास है जो कि हेलोजन है ब्रोमीन, विच इज Br। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। सो these आर द हेलोजन्स which we are having। सो हेलोजेंस में अगर हम बात करें, सो हेलोजेंस में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो उनका नेम हेलो, दैट इज द क्रोमो ब्रोमो आयोडो, एज दिस नेम इज यूज्ड फॉर द राइटिंग डाउन द नेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया डैश एक्स, तो सो डैश Cl, Br एंड I। देन कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज डैश Cl डैश Br डैश I, सेम। सो ऑक्सीजन जिसमें एज अ हेटेरो एटम है, सो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स है। सो जैसे कि हो गया अल्कोहल, एक है अल्कोहल, देन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर। सो अल्कोहल जो है, सो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज डैश ओ एच। सो कंडेंस फॉर्मूला इट्स डैश ओ एच। नेक्स्ट अल्डिहाइड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज सी एच ओ, दिस इज अल्डिहाइड। देन नेक्स्ट इज द कीटोन, कीटोन दैट इज द सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला CO। नेक्स्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज द सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दैट इज COOH, it is the condensed formula of the carboxylic acid. Next is the ether, ether that is O, condensed formula O. Ester is C double bond O, that is COO। and amines जिसमें कि नाइट्रोजन एज द हेटेरोएटम है, so it is having the NH2, that is condensed formula NH2। So these are the various different functional groups which are available, and combining, attaching all these functional groups to the carbon atoms in the carbon compounds, so that leads to the formation of more carbon compounds, we can see here। सो आगे जो है वो है homologous series। So you have seen that the chains of the different binding the carbon atoms to each other। Moreover, you have also seen that a functional group can take place of a hydrogen atom on this chain। As a result of this, large number of the compounds are formed having the same functional group but different lengths of the carbon chain। For example, there are many compounds such as CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2, CH2OH, CH3CH2, CH2, CH2OH, विच कंटेन अल्कोहल एज द फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो अलग अलग जो कंपाउंड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड अटैचिंग द फंक्शनल ग्रुप टू इट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज CH3OH, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH, दैट इज द प्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2CH2OH, दैट इज द ब्यूटाइल अल्कोहल, विच कंटेन अल्कोहल एज द फंक्शनल ग्रुप। सो जैसे कि हमने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बारे में अभी स्टडी किया कि OH जो है वो अटैच होता है एज रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम इन दैट पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड, which adds the specific chemical properties into that particular carbon compound that leads to the formation of the new compounds। so ये जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं और OH ग्रुप को हमने अटैच किया है। So, though the length of the carbon chain in them is different, their chemical properties are very much similar due to the presence of the same functional group in them। और अगर हम यहाँ पर देखें कि इनके कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो अलग अलग है,
लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें सो वो सारी सेम होगी। सेम क्यों होगी? सो द रीजन बिहाइंड दिस दैट, सो जो फंक्शनल ग्रुप जो अटैच किया है दैट इज द OH अल्कोहल ग्रुप। So due to which due to the attach of this specific alcohol group to that particular carbon chain, so उसमें जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज होगी सो वो सेम होगी, लेकिन उसकी कार्बन की लेंथ की चेंज कितनी भी हो। So the series of the compounds formed by the joining the same functional group in the place of a particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called as the homologous series। और homologous series क्या है कि जो ऐसे सीरीज कंपाउंड्स की कि जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है इन द प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सो लेकिन जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो सच टाइप ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज द होमोलोगस सीरीज। होमो होमो यानी कि सेम, सेम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। सो सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से दैट सच टाइप ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। So there are the different homologous series in accordance with the functional group. For example, homologous series of alcohols, homologous series of the carboxylic acids, homologous series of the aldehydes, etc. All the members of the homologous series are the homologs of each other. और homologous series के जो members होते हैं, so they are the homologs of the each other. Earlier, you filled the structural formula and molecular formula in the table 9.12. So पहले हमने 9.12 जो टेबल था, सो यहाँ पर स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फिल करने के लिए कहा गया था। सो वो हमने फिल किया था। नेक्स्ट जो कि यहाँ पर अभी कहा गया है कि earlier you filled the structural formula and molecular formula in the table 9.12 from that the initial part of the homologous series of the alkanes were formed। और इसकी वजह से जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूलेस जो फिल किए, सो उसकी वजह से एक होमोलोगस सीरीज तैयार हुई अल्केन्स की, जो कि हमें पता नहीं था। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्केन्स कैसे फॉर्म होती है। बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम वी आर एडिंग दैट CH2 that is the methyl group to that particular, that leads to the formation of the homologous series of the alkanes। alkanes क्या है? सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। Let us understand the characteristics of homologous series by considering initial parts of the homologous series of alkanes, alkenes and alcohols। So characteristics of homologous series कौन कौन सी है, so उसके बारे में हम स्टडी यहाँ पर करते हैं। सो होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स यहाँ पर दी है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। सो ये सीरीज कंटिन्यू होती है, जैसे कि हो गया कि मीथेन हो गया। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डोडेकेन। So such type of this series which we can observe कि मीथेन जो है CH4, फिर इथेन CH3CH3, प्रोपेन CH3CH2CH3, ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3, पेंटेन CH3CH2CH2CH2CH3 and hexane six carbon atoms that is CH3 CH2 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 CH3। सो नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स यहाँ पर अलग अलग है, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीथेन में एक है, एक इथेन में दो है, प्रोपेन में तीन, ब्यूटेन में चार, पेंटेन में पांच, हेक्सेन में छह। नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने अटैच है? सो यहाँ पर CH2 यूनिट्स दैट इज वन अटैच, यहाँ पर CH2 यूनिट्स दो है। सो CH3 के यूनिट्स CH2 यहाँ पर तीन है। सो CH2 के जो यूनिट्स यहाँ पर अटैच्ड है, सो वो हमें पता चलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जो कि हमने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो CH2 एक ग्रुप हो गया, फिर CH2 एक दो ग्रुप हो गया। सो सिमिलर टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आप लिख सकते हैं, और जो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स अटैच है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पर स्टडी करें, सो बॉइलिंग पॉइंट -162 डिग्री सेल्सियस दैट इज ऑफ द मीथेन, इथेन का -88.5, -42 ऑफ प्रोपेन, 0 ऑफ द ब्यूटेन, 3669। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे ही होमोलोगस सीरीज में ऑफ अल्केन्स में हम जैसे जैसे डाउन जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द कंक्लूजन दैट विच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्केन्स। नेक्स्ट जो है होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल। सो अल्कोहल दैट इज द OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है। सो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल,
पेंटेनॉल, हेक्सानॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल एंड डेकेनॉल। सो दिस टाइप ऑफ द अलग अलग जो अल्कोहल के जो होमोलोगस सीरीज है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो कंडेंस फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। मीथेन का CH3, मिथेनॉल का CH3OH, इथेनॉल का CH3CH2OH, प्रोपेनॉल का CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल का CH3CH2CH2CH2OH। सो यहाँ पर सिमिलरली आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स अटैच कौन कौन से है सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आता है। मिथानॉल 63, इथेनॉल 78, प्रोपेनॉल 97, ब्यूटेनॉल 118। सिमिलर टाइप्स ऑफ द ट्रेंड जो कि हमने होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्केन्स में देखा, सो सेम टाइप ऑफ द ट्रेंड हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो कि हम जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, सो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्किन्स। सो अल्किन्स के इसमें क्या ट्रेंड ऑब्जर्व होता है वो देखते हैं। इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, वन ब्यूटीन, वन पेंटीन। सो उनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर दी है। सो इथीन, ENE मीन्स डबल बॉन्ड, और ANE जब आएगा सो दैट इज द अल्केन, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। और जब YNE आएगा दैट इज आइन, सो इट विल बी हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड। सो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और आप यहाँ पर CH2 के जो यूनिट्स है वो आप पर लिख सकते हैं। एक जो मिस्टेक यहाँ पर जो अगर ये एग्जाम में आ गया और अगर आपको पूछा कि नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स यहाँ पर कितने हैं, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि CH2 वो देखते हैं CH2 एक है, CH2 एक है, दैट मीन्स दो CH2 ग्रुप यहाँ पर है। सो यहाँ पर दो CH2 ग्रुप वो लिख देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, वो सही नहीं है। सो उसके लिए आपको इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो कि है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको देखना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आपको कितने CH2 ग्रुप्स वहां पर अटैच्ड है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट -102 डिग्री सेल्सियस, -48, -6.5, 30। सिमिलर टाइप ऑफ द ट्रेंड जो कि अल्केन में देखा, देन अल्कोहल के इस सीरीज में देखा, अल्किन्स के सीरीज में भी वैसा ही सेम ट्रेंड है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे सो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द सिमिलर ट्रेंड विच इज ऑब्जर्व। टिल अगर होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड या फिर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड अगर आपके अगर कुछ डाउट है सो आप यहाँ पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। You have found that in any homologous series, while going in an increasing order of the length of the carbon chain, every time one methylene unit, that is the CH2 group, goes on increasing. Therefore, while going in an increasing order of the length, there is a rise in the molecular mass of the members by the 14 unit. So 14 unit, or that is the 14 Dalton. सो एक जो यहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, सो दैट इज दिस यू जो कि है, सो इट इज डाल्टन, और हम यहाँ पर 14 यूनिट भी कह सकते हैं। सो ये 14 कैसे है? सो यहाँ पर जो CH2 है, सो CH2 में क्या है, CH2 में कार्बन क्या है, कार्बन इज दैट इज 12, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज 1। सो लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर दो होने के कारण 1 × 2, यहाँ पर दो और वो 12, सो 12 + 2 दैट लीड्स टू द 14। सो एटॉमिक मास कितना हो गया मिथिलीन ग्रुप का, 14। सो उसकी वजह से जब जब मतलब एक एक मिथिलीन यूनिट जब ऐड होता चला जाता है, सो दैट मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट से 14 डाल्टन से बढ़ता जाता है। दिस इज द कंसेप्ट विच इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। आगे देखते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल 9.17 A, B and C will reveal one more point to you, and that is the gradation in the boiling point. Boiling point is a physical property of a compound. Again, one of the complete the following main important question related with your स्कूल लेवल एग्जाम्स और द बोर्ड लेवल एग्जाम्स की बॉइलिंग पॉइंट जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कंपाउंड की। Generally, it is found that while going in an increasing order in any homologous series, physical property shows variation in one direction. That is, gradation is observed in the physical properties. और जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे थे कार्बन कंपाउंड में, सो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जा रहा था। सो हेलो, आपने तो मतलब ABCD से लेके जे तक आपने पूरा अपना नाम रखा है। हेलो हेलो।
ओके, अच्छा आपका नाम फैजान है। हेलो फैजान। हेलो। सो आगे देखते हैं कि आगे हम देखते हैं यू हैव फाउंड इन द होमोलॉजी सीरीज व्हाइल गोइंग, जैसे कि 1 मिथिलीन यूनिट से बढ़ता जा रहा है और बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट में जो कि हम देख सकते हैं कि ग्रेडेशन जो कि है ऑब्जर्व होता जा रहा है। So the molecular formula of the members of the homologous series of the alkanes can be represented by the general formula that is CnH2n. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि अल्केन्स का है वो है CnH2n. The value of the n is 2. We get the molecular formula of the first member of this series as C2H4. That is C2H4. When the value of n is 3, molecular formula of the second member of the alkene series is obtained. That is C3H6. That is C3H6. That is the propane. अच्छा, आप बिहार बोर्ड के क्लास 10th में है। सो आपको मतलब ये सीरीज जो है वीडियोस की वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप सिर्फ इस सीरीज को फॉलो कीजिए। अगर बाकी के जो वीडियोस कंटेंट जो है अगर आपने वो वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है जो आपने देखे नहीं होंगे, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो जिसकी मदद आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में होगी। सो एज ईच कंसेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, जो कि आपका मतलब प्रॉपरली स्टडी हो जाएगा। So C3H6. What will be the general formula for the molecular formula of the members of the homologous series of the alkanes? So what will be the value of n for the first member of the series? The general formula, molecular formula for the homologous series of the alkynes is CnH2n minus 2. Write down the individual molecular formula of the first, second, and third members by substituting the value 2, 3, 4 respectively for the n in this formula. From the above examples, we come to know the following characteristics of the homologous series. और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज का जो अल्केन्स का जो फॉर्मूला है, सो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है, दैट इज CnH2n। और जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज अगर हम अल्किन्स की बात करें, ये तो अल्काइंस का यहाँ पर CnH2n-2 यहाँ पर दिया है। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हो। सो मैंने वैसे भी मतलब हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर आप अपनी आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे और इस लेक्चर को भी साथ में देखोगे, सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So while going from one member to the next member in a homologous series, one methylene, that is the CH2 units, get added. Molecular mass increases by the 14 unit, 14 Dalton. Number of carbon atoms increases by the 1. और जैसे कि हम होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे हम एक एक मेंबर के नीचे यहाँ पर जाते हैं, मीथेन हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। सो जैसे जैसे हम नीचे सीरीज में जाते हैं, सो 1 मिथिलीन यूनिट जो कि हमने देखा कि एक ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास 14 डाल्टन से बढ़ता जाता है। और जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी एक एक करके बढ़ते जाते हैं। सो जैसे कि मीथेन में अगर हम कार्बन एटम्स देखें, सो एक है, इथेन में दो है, प्रोपेन में तीन, ब्यूटेन में चार, पेंटेन में पांच, हेक्सेन में छह, हेप्टेन में सात, ऑक्टेन में आठ, नोनेन में नौ और डेकेन में 10। सो यहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर में दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। सो जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 8th एंड 12th मेंबर का कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में या फिर आप लाइव चैट में भी बता सकते हैं। आपको सिर्फ n की वैल्यू n की जगह 8 पुट करना है और उसका होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स का आप नाम भी कमेंट कीजिए और उसका फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा, सो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स में आगे हम बढ़ते हैं। सो पहला है सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स। सो जैसे कि नोमेनक्लेचर एक सिस्टम जो डेवलप हुआ, सो उससे पहले सो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम आया, दैट इज फ्रॉम द IUPAC, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द स्टैंडर्ड नेम्स सिस्टम। सो उससे आने से पहले जो कि कॉमन नेम्स जो कि यूज किए जाते थे अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, सो वो क्या थे? सो वी हैव सीन दैट टुडे मिलियंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर known.
Initially, when the number of the known carbon compounds was small, scientists named them in the variety of the ways. Now those names are called as the common names. For example, sources of the names for the first four alkanes, namely methane, ethane, propane, and butane, are different. So the names of the alkanes thereafter were given from the number of the carbon atoms in them. Two isomeric compounds having a straight chain or the branch chain in their structural formula are possible for the molecular formula, that is C4H10. The difference and the interrelationship in them was indicated by naming them as the N-butane, that is the normal butane, and I-butane, that is the isobutane. सो जब तक मतलब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सिस्टम जब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, सो साइंटिस्ट को जब जब जैसे जैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स जो मिलते गए, सो उन्होंने जो कि कॉमन नेम्स उसको प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. सो जैसे कि एन ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन हो गया. सो दिस वेर द कॉमन नेम्स विच वेर गिवन टू द कार्बन कंपाउंड्स एट दैट टाइम. सो बाद में आया आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम. सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम ने क्या किया, उसने अपने खुद से कुछ रूल्स, कुछ स्टेप्स डिफाइन किए. सो जिसकी मदद से हम कौन से भी कार्बन कंपाउंड को नेम दे सकते, नेम असाइन उसका कर सकते हैं. So International Union for the Pure and the Applied Chemistry, IUPAC, put forth a nomenclature system based on the structure of the compounds, and it was accepted all over the world. Therefore, there is a provision in the system for giving a unique name to all the carbon compounds. Let us see how some straight chain compounds containing one functional group are given IUPAC names, and let us also see their common names given. IUPAC names and let us also see their common names. There are the three units in the IUPAC name of any carbon compound, that is the parent, suffix and the prefix. These are arranged in the name as follows, that is prefix, parent and suffix. An IUPAC name is given to a compound on the basis of the name of its parent alkane. The name of the compound is constructed by attaching appropriate suffix and the prefix to the name of the parent alkane. The steps in the IUPAC nomenclature of the straight chain compounds are as follows. और यहाँ पर जो कि आयोपैक नॉमेनक्लेचर का जो सिस्टम का एक प्रॉपर जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस उन्होंने इस्टेब्लिश की फॉर नेमिंग अ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स, सो दैट इज कि प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर पेरेंट आएगा, फिर सफिक्स ऐड होगा. सो उसके कुछ जो स्टेप्स थे जो कि अलग अलग कंपाउंड्स को नेम करने के लिए अलग अलग रूल्स का यूज करके जो हेल्पफुल रहे, सो दैट दिस विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड्स नेक्स्ट वीडियो. स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिलेटेड विद द फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, और जो भी हमने अब तक देखा जनरल फार्मूला वगैरह हो गया, कॉमन नेम सिस्टम हो गया, सो उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, सो यू कैन आस्क इन द लाइव चैट और एल्स यू कैन कमेंट इन. सो so if you like the content provided here, so do like, share and subscribe to this channel, and stay tuned for the further more educational videos. So thank you for joining. Thank you.